خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کی موجودگی میں قومی سلامتی کی صورتحال پر اہم بیک گراؤنڈ بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ بریفنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ اس موقع پر شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی و اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ لائن آف کنٹرول سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کی قلعے کھل گئی۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی دعووں کی حقیقت دکھانے کے لیے مقامی اور عالمی میڈیا کو دورہ کروایا۔ وزارت اطلاعات کا آج بھی پاکستانی اور عالمی میڈیا کے لیے ایل او سی کا دورہ کرائے گا۔ ایل او سی کے دورے کا مقصد بھارت کے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ بھارت پاکستان میں نام نہاد اور خیالی دہشت گرد کیمپس کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ میڈیا کو ان مقامات پر لے جایا جائے گا جنہیں بھارت نے دہشت گرد کیمپس کے طور پر پیش کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان امن کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرتا ہے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی یا دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے، مودی سن لو، یہ جس میزائل کا ہم نے آج تجربہ کیا ہے یہ ایٹمی ہتھیار ہے۔ بھارت اگر گزشتہ تجربے بھول گیا ہو تو آج کا تجربہ یادداشت کے لیے ہے۔ اپنی سالمیت کو خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کیا۔ مودی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پہلگام واقعے میں ہلاک افراد بے گناہ تھے۔ پہلگام کی تحقیقات کرائیں، لیکن بھارت اس کی طرف نہیں آیا۔ بھارت کا مقصد ہے کہ پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیریوں پر ظلم کرے۔ کشمیریوں پر اتنا ظلم 75 سال میں نہیں ہوا جتنا 7-8 سالوں میں ہوا۔ یہ ظلم کشمیریوں کو روک نہیں سکتا، وہ حق خود ارادیت لے کر ہی رہیں گے۔ بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ ہر طرح کی درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے کوئی خط یا پارسل بھی وصول نہیں کرے گا اور پاکستانی جھنڈے کا حامل کوئی جہاز کسی بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے جدید ابری میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ تجربہ اندس مشقوں کے تحت کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان نے ایک بار پھر اپنی دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر دیا۔ ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ دشمن کو واضح پیغام ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والا یہ میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تجربہ اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے تحت جاری فوجی مشق انڈس کے دوران کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز نے تربیتی لانچ کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب میزائل تجربے پر انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ قوم کے سپوتوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز ملکی سلامتی کے ہر پہلو پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کامیاب تجربہ پاکستان کے مضبوط اور مؤثر دفاع کی ایک اور ضمانت ہے۔ چین کے بعد بردار اسلامی ملک ترکیے نے بھی بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ترک سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैन अल-अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की है। उनका कहना था भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने यूनान और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया है। इसहाक़ डार ने गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दामात से न सिर्फ खित्ते के अमन और सलामती को खतरा है बल्कि आलमी क़वानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करता है और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। इसहाक़ डार ने पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इआदा किया और कहा आलमी बरादरी को इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। पाक यूनान वज़राए ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की हैसियत से राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश की। भारत की जानिब से हमले का खतरा ताहाल मौजूद है, लेकिन दुनिया के अहम ममालिक कोशिश में हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा आगे न बढ़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा किसी सिफारती ज़राए से ऐसी तजवीज़ नहीं आई कि भारत को फेस सेविंग दी जाए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि हम दोस्त ममालिक के नुमाइंदों से राबते में हैं। भारत और पाकिस्तान के खिलाफ IMF समेत दीगर मालियाती इदारों के पास जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने 2019 में भी भारत का तैयारा मार गिराया था और पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तानी हिंदू बरादरी ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सराब दयाल ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए एक ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन अम कमेटी माइनॉरिटी विंग किश्वर सोनी ने कहा कि हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। समाजी कारकुन राजीव ठाकुर ने कहा कि हम पाकिस्तानी अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। हम ना ही जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। सदुम चंद ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, जबकि महिंद्रा कुमार का कहना था कि नाकामी पर सिर्फ भड़के मारी जा रही हैं। हम जंग में अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कांग्रेस रहनुमा मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत तलब कर लिए हैं। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मारे गए, क्या अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा? 2019 में कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हमला नहीं हुआ। बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 26 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी जबरन हिरासत में हैं। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में मारे जाने का मंसूबा बनाया गया है। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें, प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीर शेयर की जाएंगी। जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, एतराफ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंध पुलिस के दलेर कमांडो और बॉक्सर शहीद आफरीदी ने एक बार फिर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में शहीद आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर
तरफजोत सिंह बावा को चौथे राउंड में शिकस्त देकर धूल चटा दी। मुकाबले के तीसरे राउंड में ही भारतीय बॉक्सर के कदम लड़खड़ा गए और चौथे राउंड में रेफरी ने उन्हें मजीद खेलने से रोक दिया। शहीर की इस शानदार फतह के साथ उनका शुमार दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में हो गया। फतह के बाद एनटीए न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहीर आफरीदी ने कहा कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान की जीत है। उन्होंने एनटीएन और मॉर्निंग स्पॉट के एंकर बिलाल खान का बेहतरीन सपोर्ट पर शुक्रिया भी अदा किया। शहीर आफरीदी ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन के दाई हैं। खेलों के जरिए रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर भारत ने जारहियत की कोशिश की तो उसे मालूम होगा कि हम दिफा करना खूब जानते हैं। लियारी के मेहनतकश की बेटी बॉक्सर बनकर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करने लगी। आलिया सुमरो ने थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। बैंकॉक के वर्ल्ड सेरियम स्टेडियम में होने वाले बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तानी बॉक्सर आलिया सुमरो ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए थाईलैंड के फाइटर सुतिदा गानानोच को शिकस्त दे दी। दोनों फाइटर्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन आलिया सुमरो ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए मुसलसल दबाव में रखा और आखिरकार फतह अपने नाम की। ये कामयाबी न सिर्फ आलिया सुमरो के करियर का अहम संग मील है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फख्र का लम्हा है। कुछ मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। डेरा इस्माइल खान और कोट अद्दू में बादल खूब बरसे, जबकि हैदराबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया है। उधर कराची में भी बादल बरसने को बेताब हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर अकायद में पीर के रोज बारिश का इम्कान है। आज मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। पीर को भी दिन के वक्त गर्मी और नमी का राज बरकरार रहेगा। शाम के वक्त आंधी चलने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी आज से गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है।